students. Now we will go through the rest of the topic of prokaryotic cell. In our last class we have started the prokaryotic cell. I told you what is the cell envelope. I told you the cell envelope are exclusively found in bacterial cell, that is prokaryotic cell, and it contains outer capsule or capsid or protein coat, middle cell wall, and inner part is cell membrane. See, the outer capsule or capsid is also called as glycocalyx. It is the outermost layer of cell envelope which chemically composed of polysaccharide with or without protein coat. Protein coat in some bacteria protein coat is found, but in some other bacteria protein coat वाले coating गोटे layer protein रो layer नहीं. But in most of the bacteria polysaccharide will be found definitely. Polysaccharide सहित protein रहे कोड रहनी complex बॉन्ड रहनी कोडा capsid रो तो layer outer layer. When glycocalyx is thick and tough, माने thick मोटा और hard है कि थीवा tough है कि थीवा, it is called as capsule. Means, see, these are important things and very fundamental things about cell. You have to understand all these things. Cell विषय आमे fundamental जिनसे पढ़ुचे, it is most important chapter. बारंबार कहूची, total biology रो एटा important chapter for every important concept. सबुथिरे physiology पाई मध्य human physiology, plant physiology, second year topics, entrance topics पाई बहुत important chapter टा एटा होटे. सेति में बुझिबा दरकार fundamentals. जदि polysaccharide सहित protein भी अच्छी बोले से thick है जीवो, that layer of capsule or capsid will be thick, then that will be called as capsule. Kintu in some time the capsule does not have a protein coat also, only polysaccharide layer also, that is thin layer. Cell wall is rigid means hard है कि थी वो rigid means this particle is rigid, ये flexible नहीं, rigid opposite कौन flexible. This is a rigid middle layer of cell envelope, which one cell wall, that provides shape and prevents bacterium from bursting in a hypotonic solution. माने कौन hypotonic, hypo means low. हमें पढ़िबा what is hypotonic solution, what is hypertonic, we will understand. But for the time being एतिकी जान दे था hypotonic solution माने low concentration solution, पानिया solution. Solution माने जानी चाहिए solute plus solvent is equal to solution. So चीनी पानी गोटे solution, in that the water चीनी पानी मीठा पानी whatever solution चीनी पानी रे sugar solution रे कौन रहुची, water is the solvent and sugar molecules are the solute, together mixed is called as sugar solution. Similarly, if some solution have low concentration of solute, that is called as hypotonic solution. Hypertonic just are opposite. If the solution have high concentration of the solute, that is called as hypertonic solution. Okay, so high concentration low concentration किमी जाना पड़ियो सर, comparison आसियो solution A solution B. Solution A is highly concentrated compared to solution B, therefore solution A is hypertonic. Solution B is less concentrated compared to solution A, therefore solution B is hypotonic. एमिति बुझाबो सबु बळे जो सॉल्यूशन रे हाइपरटोनिक किबा हाइपोटोनिक किबा आइसोटोनिक एवडा सब केमिस्ट्री टॉपिक सॉल्यूशन वाला चैप्टर टा आसीबो सेथिरे सब पढा हबो व्हाटएवर आमे जोडा जोडा रिलेटेड रहउछ त आमे डिस्कशन करिवा ऑब्वियसली से केमिस्ट्री हो कि फिजिक्स हो
about anything. So whatever topic is related to biology, I will discuss with you, clarify your concept. Okay. So therefore, solution contains, जेतो solution रे आमे तो hypotonic, hypertonic, आउटे कौन isotonic. Iso means same, means solution A, solution B. Both रो concentration जति same अच्छी, बोले ताको isotonic solution बोली कहिबा. See, no problem. I will discuss in details about these solutions in our coming topics. Don't worry, for the timing you understood. मुझे कहली solution विषय make a note, लिखी दियो टिके running notes रे. So that hypotonic solution माने low concentration of solution. रे जेते बळे आमे सेल रो बाहर जदी लो कंसंट्रेशन थिबो सेल रो भीतर कोन थिबो हाई कंसंट्रेशन थिबो एथिरे कंपैरिजन ता हला से भीतर जदी आमे रखिबा गोटे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भीतर सेल डा को जदी रखिबा फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली रखिबा लैबोरेटरी रे विभिन्न टाइप रो एक्सपेरिमेंट होची इफ वी पुट ए सेल within a hypotonic solution what can happen cell can burst किमिति होची सर ए सब जिंस जाक पढा हबो परे हला तमे ए टॉपिक टा आगे सरू आगो टॉपिक गुडा अछि किमिति बर्स्ट हबो किमिति बल्जी हबो रिजिड हबो सब जिंस को हबो परे जदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे तो सेल टा को रखिबा सेल टा फुलिबो फुलिला बोले सेल टा फाटिले सेल को फाटिवा पई माने बर्स्टिंग हेबा पई के प्रिवेंट करिवो सेल वॉल because that cell wall is rigid. जिमिति की उदाहरण देबा गोटे बेलून डा भितरे जेति की पवन रहिबा कथा रहउची एयर जेति की रहिबा कथा that is there within a balloon. जदि हमें excess air देबा that balloon will burst. yes or no? कारण तार जो मेम्ब्रेन टा अछि बेलून रो जो लेयर अछि that balloon layer is flexible up to a limit. गोटे लिमिट जे फ्लेक्सिबल हे परिबो लिमिट क्रॉस करले बेलून रो लेयर will burst. जल्दी से बेलून टा को गोटे काठर बॉक्स भीतर रखि दबा that काठ बॉक्स is rigid. that wooden box is rigid माने hard. wooden box flexible नहीं, it is rigid. हेले within that wooden box काठ बॉक्स भितरे that balloon we will put inside that wooden box and we will put extra air. एक्स्ट्रा एयर पकेले कोन हबो बेलून टा तो फुलिबोनी कारण तार सरफेस एरिया वुडन बॉक्स रो सरफेस एरिया को तो लागि जीवो बेलून टा फुली परिबोनी ले कोन हबो से एक्सेस एयर ही जीवोनी बेलून भी बर्स्ट हबो नाही. ओके तो दिस इज द लॉजिक. फिर दी सेल मेम्ब्रेन फुलिबो बिकॉज़ सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल किंतु सेल वॉल जेतु रिजिड सेल मेम्ब्रेन को बेसी फुलिबा को दबो नाही तो ये किछि मात्रा रे हेल्प करिवो किंतु एक्सेस सेल वॉल रिजिड जे कोन काठ बॉक्स वाले रिजिड की नो सेल वॉल गुड रिजिड कंपेयर टू माने कंपैरेटिवली रिजिड माने टिके कठिन टिके स्ट्रांग थाए कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन. तो व्हेन सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड किंतु एक्सेस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखले मध्य दरकार पड़े सेल वॉल मध्य बर्स्ट हे पारे बुझा पड़छि ना नहीं. बट सेल वॉल इज हैविंग a most important property and underline करो. It provides proper shape and size to the cell and prevent the cell in bursting. Burst हुआ को cell को prevent करिवो when you put that cell within a hypotonic solution. And it is most important thing that the prokaryotic cell wall is mostly made up of peptidoglycan. Important thing you have to remember, 1 mark. Entrance oriented peptidoglycan which is made up of murin or mucopeptide. Peptidoglycan होची ओटे complex of carbohydrate and protein और carbohydrate ओटे complex. So mucopeptide peptide होची कोन ओटे protein component, muco होची ओटे carbohydrate component. Okay, a details गुडा का हमें पढ़िबा biomolecules when I will teach you about biomolecules, there we will understand. कम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव विषय बेसी डिटेल्स हमें पर देखिबा. बेसी हमें एति कि जण ग्राम बोली जण साइंटिस्ट अछंती ही हैज अ कैटेगरी बैक्टीरिया इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप. ओटे ग्राम पॉजिटिव बोली कहले ग्राम नेगेटिव बोली कहले.
Okay, he has performed an experiment and got some two type of result. He got some positive result in that experiment, and the bacteria जे कि गोटे particular color देले गोटे stain यूज करले ताको ग्राम स्टेनिंग बोली कहले. स्टेन माने गोटे दाग, गोटे जेमिति कि स्टेन माने दाग जानछो क्लॉथ रे स्टेन लागले स्टेन रिमूवर बोली कहउछंती. दाग को हटेवा पई सो डिफरेंट टाइप रो स्पिरिट यूज करछंती. जेमि तमे नेल पॉलिश लगाउछो सेठे नेल पॉलिश रिमूवर रे स्टेन रिमूवर बोली कहा जाय ताको. Okay, stain means daga. So Graham बोली जाने scientist, he has used some stain जेमिति कि मिथिलीन ब्लू, कोमासी ब्रिलियंट ब्लू, इन सब different stain गुड़ा का अच्छी. So he has used some stain, okay, to color the bacteria, to color the outer portion of bacteria. हेले सेथिरे जो positive color किछटा violet color और purple color आसिला, किछटा red color आसिला. So in that experiment, some bacteria show positive result. Therefore, he named those bacteria as gram positive bacteria. But the scientist Graham has performed some other experiment and with some bacteria and observed that particular bacteria are showing negative result. Therefore, he named that bacteria as gram negative bacteria. It is fundamental. In positive bacteria, cell wall is single layered. हेले इसे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो डिफरेंशिएट कर दला परे देखिले why some bacteria are gram positive and why other bacteria are gram negative. तार किछिटा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर अछि बोली तो किछिटा निर्दिष्ट लक्षण जोगु से बैक्टीरिया गुडा को पॉजिटिव रिजल्ट देले आउ किछि बैक्टीरिया नेगेटिव रिजल्ट देले. तो से लक्षण गुडा को कोन what are those characteristic features Graham has observed? First characteristic feature is cell wall is single layered. Gram positive bacteria रे देखिले कि ताकर cell wall टा single layer अछि, but gram negative bacteria रे देखिले cell wall टा double layer हेके अछि. Double layer of what? Double layer of peptidoglycan. Single layer of what? Single layer of peptidoglycan. So this is one characteristic features. But there are some more other characteristics features are there which are differentiating the gram positive and gram negative among each other. माने किछिटा अन्य characteristics feature मध्य अच्छी जे कि gram negative to gram positive को भिन्न करूचे. Then come to cell membrane. Cell membrane which is to innermost layer of a cell. I will show you the diagram. Don't worry for that. Innermost cell of a cell envelope, it is selectively permeable. Underline this point, selectively permeable means what? Permeable wale jaku permission diya hechi. You come inside. For example, this is a classroom where I am teaching. Inside the classroom, few persons are only permitted. Who are those? Teacher and student. Without teacher and student, no other human being is permitted inside the class. Okay, so student and teachers are permeable to this classroom, yes or no? But parents are not permeable to this classroom. They are permeable to only reception hall. हाँ ना नहीं जोटे बसी की डिस्कशन करी हो क्लासरूम सिलेक्टिवली परमिएबल बोली कहगला अर्थ सब मनीष आसी परिबे क्लासरूम भितर को किंतु क्लासरूम रे जहार नीड अछि सेही त आसीबो. दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मींस सिलेक्टेड. देयरफॉर सेल भितर को प्रथम लेयर हेगला कोन कैप्सूल, द्वितीय लेयर हला कोन सेल वॉल, थर्ड एंड इनरमोस्ट लेयर होची सेल मेम्ब्रेन. So cell membrane को पार होई की क्रॉस करी की every molecule cannot enter. If that molecule is needed for cell or
if that molecule is having some role within the cellular metabolic processes, जदि cell रो metabolic activity पाइन that some particular molecules are having some role, then only those particular molecules are allowed, permitted within the cell membrane. Therefore, cell membrane is called as selectively permeable. I hope you understood. Selectively permeable मतलब semi permeable, because semi means half, माने आधा जिनस allowed हबो आधा जिनस allow हबोनी. Semi permeable. Membrane similar to that of eukaryotic membrane. माने एबे cell membrane prokaryote रो जो type रो characteristics features maintain करूची, the same characteristic features eukaryotic membrane मध्ये maintain करूची. This means what? कि cell membrane of every living cell is almost all maintaining, माने प्रायतः selectively permeability ही maintain करे. It is important thing you have to remember. Extra point. Okay, what is that extra point? Extra point dechi, but only difference is that in bacteria they lack sterol, instead hopanoid, एसु sterol hopanoid एवडा सु कोन lipids गुडाक सब एवडा सु हम बायोमोलिक्यूल्स रे टिके टिके बेसिक आइडिया हबो. See, murin, peptidoglycan, mucopeptide, एमि सब हमें सु molecules गुडाक विषय रे सु पढिला. Okay, सेमिति की glycogen, starch, cellulose. Okay, all these are सेमिति की glucagon, सेमिति की insulin. See, all these are what? These are all nothing but called as biomolecules. What are biomolecules? See, in the non-living world, ये जो non-living matter गुड़ा का अच्छी, this is non-living. These are made up of some particular molecule, atom and chemical. Yes or no? हाँ ना नहीं. जितनी की सब existence अच्छी, a earth रे, every existence is made up of atoms, molecule and chemicals, living and non-living both. But the living molecules, which are called as biomolecules, which are actually composing the living particle or living cell within and outside. Our living body is made up of living cell, and living cell are made up of, we have seen different particles. जोड़े cell wall आस्ती, cell membrane आस्ती, कोट nucleus आस्ती, nuclear membrane, mitochondria. These are all the particles or parts of a cell. So how these cell particles or cell parts are made up of? These are made up of some particular molecules, that is called as biomolecules. But the biomolecules are more complex compared to the normal chemical or molecule. जेमिति की मीथेन हला, जेमिति की प्रोपेन हला, ब्यूटेन हला. These are normal organic molecules. Similarly, different inorganic molecules are also there. जेमिति की हाइड्रोक्लोरिक एसिड हला, जेमिति की सल्फ्यूरिक एसिड हला, जेमिति की HCl, H2SO4, H3PO4 हला, हाइड्रोजन सिमिति हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिमिति की सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. These are inorganic molecules, like chemicals will go on the egudaka madhya complex. But if you see glucose कौन C6H12O6 देखो कितने complex है गला. ये बायोमोलिक्यूल, ये होचे सब सिंपल बायोमोलिक्यूल, आउरी बायोमोलिक्यूल complex अच्छी. चलिए ग्लूकोज टा गोटे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च देखियो बोले ये गोटे complex कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो ये सब अच्छी. आमे सब विषय पढ़िबा बायोमोलिक्यूल्स रे. किंतु सार एबे काहे एडा सब डिस्कशन करछंती पण आपण जानना आंती कि बायोमोलिक्यूल्स रे डिस्कशन हबो. यस, आई नो दैट. बट मु काहे एती कथा कहली कारण सेल पढ़ला आडको मध्य ड्यूरिंग टीचिंग द सेल टॉपिक I will mention you different name of biomolecules,
मु किछटा बायोमोलिक्यूल रो ना गुडा कड़े मेंशन करिवि जिमिति कहली पेप्टिडोग्लाइकेन जिमिति एबे ग्लूकोज बोली आसीबो जिमिति एबे देखो एटा होपानॉइड एटा स्टिरॉल आसिला तो आई हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस दिस थिंग्स नहले सार एटा किछि कहूना धीरे पळेले परे पढेबे बोली कहि सेथि पई मु टिके टिके आइडिया दे देली कि व्हाट इज स्टिरॉल इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स लिपिड okay what is peptidoglycan it is the complex of protein and carbohydrate hala eguda सब कोन biomolecules these are responsible for building or construct different living cell particles living cell रो different particle को construct करिवारे biomolecules ही major role play करे okay हमें डिटेल्स पर पड़ेगा सो स्टिरॉल इंस्टेड ऑफ होपानॉइड माने कोन होपानॉइड ता प्रायतः यूकारियोटिक सेल मेम्ब्रेन रे रहे बट स्टिरॉल इज सच ए लिपिड व्हिच आर जनरली फाउंड इन ए बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एटा गोटे डिफरेंस देन द होपानॉइड आर पेंटासाइक्लिक स्टिरॉल लाइक मॉलिक्यूल दैट स्टेबलाइज द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन सॉरी एक्स्ट्रा पॉइंट बैक्टीरिया लेक स्टिरॉल हेले स्टिरॉल टा माने जेमि कोलेस्टेरॉल से स्टिरॉल गुडा रहे स्टिरॉल गुडा को एक्चुअली बैक्टीरियल सेल रे बेसी रहे नी यूकारियोटिक सेल रे रहे बट होपानॉइड कोन स्टिरॉल रही गोटा अलगा मॉडिफाइड फॉर्म टे जोडी की पेंटासाइक्लिक स्टिरॉल बोली कहा जाए माने चारिटा कार्बन एटम को नहीं कि साइकिल डे तयारी हिथिबो साइक्लिक स्ट्रक्चर आसो पढ़िया पर किमिति साइक्लिक स्ट्रक्चर होची किमिति कोन कोन अछि एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स वी विल टीच यू बायोमोलिक्यूल्स आसु सेरा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट टॉपिक आ कष्ट टॉपिक म्हणजे कंफ्यूजिंग टॉपिक आ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स सो सेटा हमें पढ़िबा बट स्टिरॉल तमे एतिके जानो स्टिरॉल इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल इंस्टेड ऑफ स्टिरॉल होपानॉइड्स आर फाउंड and it is very important topic for entrance oriented part in bacterial cell. Then come to cytoplasm. Cytoplasm is nothing but the innermost portion of the cell जोटा कि cell membrane पर भीतर देखा जाए आमे टिके डायग्राम टा देखिबा we will see the diagram here. See the diagram of bacteria तुमको एठे डायग्राम टा देखै छी but remember the second chapter रे biological classification when I was teaching मुझे देखो पढ़ोतले biological classification तो मैं आउथरे notes टा काढो open the kingdom monera रे मु डायग्राम टा देखैछि ओके से डायग्राम टा को भलरे देखो से डायग्राम टा को एठे कंपेयर करो ऑलरेडी मु देइछि से डायग्राम एटे टोटल बैक्टीरिया को वैसे डिस्कशन करा ही नहीं बट सेटे पूरा डायग्राम रे एवरीथिंग आई हैव मेंशनड से डायग्राम टा काढो आ ए टॉपिक टा को देखो सी द आउटर पार्ट इज एक्चुअली कैप्सूल देखो एटा कैप्सूल देखेला तापर आसिला सेल वॉल तापर होची कोन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ओटा कि सेल मेम्ब्रेन व्हाटएवर सेल मेम्ब्रेन को बड़ा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हला इनी की सेल मेम्ब्रेन आसला सेल मेम्ब्रेन पर भीतर जहा अछि दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म पर न्यूक्लियोइड अछि द पोर्शन वेयर द पोर्शन वेयर द डीएनए इज फाउंड nucleus is not there nuclear membrane is not nucleus is not there nuclear membrane is not there but DNA is there so the portion within the bacterial cell in cytoplasm where the DNA is found that particular portion माने the place is called as nucleoid अच्छी तापर ribosomes are found ribosomes अच्छी हमें पढ़ी थे then pili flagella is the long elongated देखा एटा chapter 2 रे मधे discussion करी छी open that video and open that notes topic तमे बुझी जीवा भलरे तो flagella which is a long elongated structure which is found in some cell and which is found mostly in bacterial cell but apart from bacterial cell माने bacterial cell व्यतीत flagella अन्य cell रे मध्ये देखा जाए what is the work of flagella
it is used for a locomotion, mane movement of that particular cell or organ. Then villi are also responsible for locomotion. Flagella are long, villi are small. All right, then come to cytoplasm. It is inner portion of a cell that contains the whole prokaryotic cell in excluding nucleoid. એટલે न्यूक्लियड को छाड़ देले सेल रो भितरे जहा किछ अछि ताको साइटोप्लाज्म बोली कहउछन्ती. सेमि यूकारियोटिक सेल रे न्यूक्लियस को छाड़ देले सेल भितरे जहा अछि ताको साइटोप्लाज्म बोली कहउछन्ती. कोन अछि सेल भितरे न्यूक्लियड को छाड़ देले राइबोसोम अछि, व्हाटएवर पार्टिकल्स अछि, प्लाज्मिड अछि, जहा जहा सेलुलर पार्टिकल अच्छी विद इन द सेल मेम्ब्रेन आउ न्यूक्लियड को छाड़ देकी ताको साइटोप्लाज्म बोली कहउछन्ती. The cytoplasm contain mesosome. We studied what is mesosome. Mesosome टा कोन सेल रो गोटे इनवर्ड माने सेल मेम्ब्रेन रो इनवर्ड प्रोजेक्शन. फर्स्ट माने चैप्टर 2 रे देखै छी एडा सब पढै छी मध्य. Mesosome is responsible for respiration of bacterial cell. जिमिति की रेस्पिरेशन माने कोन श्वसन क्रिया. Respiration is the process by which ATP is produced. So matriculation रो टॉपिक 9th 10th तुम पढ़िथिबो. Mitochondria in eukaryotic cell is responsible for the production of ATP, which is called as biological energy. ओडिया रे कहउछन्ती शक्ति मुद्रा ATP माने एनर्जी करेंसी. ओके, सो बॉडी सेल भितरे जहाँ भी किसी एनर्जी फॉर्म हुए एटीपी फॉर्म रे एटीपी रूप रे फॉर्म हुए. So for that mitochondria is responsible. In eukaryotic cell, what this is prokaryotic cell, and prokaryotic cell does not have mitochondria, it have mesosome. Mesosome टा कोन थाए. For example, this is cell membrane. Cell membrane रो भीतर पटु के जो प्रोजेक्शन हे कि थिबो. Inward projection of cell membrane. Inward projection of cell membrane is actually in the form of mesosome that is mostly responsible for the respiration of bacterial cell, formation of ATP. So mesosome, similarly chromatophore, different chrome means color. Chromatophore, different bacteria show different showing some coloring agents. Okay, some color से gram staining लिखिए को color दिखेला. So similarly किसी coloring particles रहे जोड़ा कि different bacteria को distinguish करे among each other. The say chromatophore particle अच्छी it is found within the cell. Ribosome is also there. Okay, ribosome कौन 70s type of ribosome पढ़िया हमें. This is responsible for protein synthesis of bacterial cell. Then inclusion body, there are some few pouches बोले छोटो बैग भलिया थिबो, छोटो पाउच की थिबो. Pouch means in पानी pouch in the small pouch over there. Inclusion body, it contains some particles which are storage particle where is store करी रखी थिबो. Inclusion body and plasmid. Plasmid is what? It is the extra genomic DNA. माने genomic DNA माने कौन? It is the DNA or called as a gene which is responsible for maintaining the body characteristics. माने गोटे organism रो particular किसी characteristics अच्छी ना नहीं. We are called as a human. We have some particular characteristics. आमर किसी ना particular लक्षण अच्छी. सिमिति गोटे गाई, सिमिति गोटे mango tree, plant, whatever, some bacteria, some protista, some yeast, fungi, every organisms are having some specific lakshana, specific characteristics. That is because of their gene or DNA. So that gene or DNA is most important, which is found in nucleoid. न्यूक्लियॉइड बोली गोटे पोर्शन अच्छी से देखा जाए, किंतु सीधी बैक्टीरिया सिमिति यूकारियोट रो कोन न्यूक्लियस भीतर देखा जाए. न्यूक्लियस भीतर जो जीन देखा जाए और डीएनए देखा जाए, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग सेल. ओके, व्हाट इज प्लाज्मिड?
प्लाज्मिड टा कौन साइटोप्लाज्म रे सेल रो प्रोकैरियोटिक सेल रो साइटोप्लाज्म रे प्रोकैरियोटिक सेल सी एटा न्यूक्लियॉइड है न्यूक्लियॉइड रे जो डीएनए रहे और जीन रहे दैट इज द जीनोमिक डीएनए दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दैट बैक्टीरिया बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार अछंती तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण अलग अलग प्रकार देखा जाती लैक्टोबैसिलस दही रे रहे तार अलग लक्षण सिंधे माइकोबैक्टीरियम जी के ट्यूबरक्युलोसिस करे तार अलग लक्षण डिफरेंट बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई तार अलग लक्षण डिफरेंट बैक्टीरिया हैव डिफरेंट functions different structure so all those characteristics are found within the gene is responsible for every characteristics of every organism किंतु ये प्लाज्मिड बोली रहे देखा है प्लाज्मिड बोली रहे मु देखैछि चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रे से मोनेरा किंगडम मोनेरा रे जो स्ट्रक्चर टा देखि देयर आई हैव गिवन दैट all these things okay तो प्लाज्मिड रे कौन रहे the gene रहे प्लाज्मिड रे मध्य किछि डीएनए रहे and that DNA is responsible for maintaining the antibiotic resistance gene okay एंटीबायोटिक हमें खाउछ ना नहीं पढ़ै थिली से टाइम रे सब पढ़ै छी तमे टिके रिकॉल करो नहल तो से नोट्स टा को काढा देखो टिके प्लस क्लास टा को ओपन करो if you open that class you can understand okay so plasmid contain antibiotic resistance gene ra काम कोन all bacteria are not killed by all antibiotic important thing make a note lekho all bacteria are not killed by all antibiotic because some bacteria have some particular antibiotic resistance gene dharinyo bacteria A this is a bacterium okay bacteria is plural bacterium is singular आ पाखरे स्ट्रेप्टोमाइसिन बोली गोटे एंटीबायोटिक अछि तार रेजिस्टेंस जीन आर प्लाज्मिड रे अछि देयरफॉर तमे जे स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको दबो ये मरिबो नाही किंतु टेट्रासाइक्लिन बोली अनदर एंटीबायोटिक अछि तार रेजिस्टेंस जीन आ पाखरे नाही बोले ताकू रेजिस्ट कला भले जीन नाही आ पाखरे सो इफ यू पुट tetracycline to this bacteria will be killed हला तो सब एंटीबायोटिक खाले सब बैक्टीरिया मरिबे नाही सेथि स्किन रे किछि इन्फेक्शन हला धरने बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूरिन रे किछि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हला if any bacterial infection occurs they have some different antibiotics এটা ଗୋଟେ important general knowledge এটা তুমি জানো তুমি দেহ খারাপ হলে ইনফেকশন হলে অ্যান্টিবায়োটিক খাই দউছো তাহলে সমস্ত গোটে অ্যান্টিবায়োটিক কাই দিয়া হলানি अलग अलग इन्फेक्शन पे अलग अलग एंटीबायोटिक बिकॉज सदी कहीं अलग दिया हला को एंटीबायोटिक दिया होची दैट एंटीबायोटिक शुड नॉट बी देयर अवेलेबल विद इन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जदि से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करला वाला जीन ता नथिबो देन ओनली से एंटीबायोटिक देले तार किल होबो से बैक्टीरिया हो कि मायने तो बैक्टीरिया आर जनरली हैविंग प्लाज्मिड व्हिच कंटेन antibiotic resistance gene so we understood what is mesosome the membrane infolding देखला infolding माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो इनवर्ड प्रोजेक्शन एटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग इन हेगी थिबो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पांसिबल फॉर रेस्पिरेशन ब्रैकेट रे लिखि दियो एटीपी फॉर्मेशन एटीपी सिंथेसिस रेस्पिरेशन रे कोन होची ATP synthesis very important one mark in eukaryotes ATP synthesis occurs in mitochondria but in prokaryote ATP synthesis occurs in DAS what is the answer mesosome okay then ribosome prokaryotic ribosomes are 70s हमें पढ़िबा ribosome विषय डिटेल्स but for the time being हम prokaryote विषय टिके पढ़दबा प्रोकैरियोट रे राइबोसोम विषय टिके पढ़िबा हमें राइबोसोम विषय डिटेल्स पर पढ़ाबो यूकैरियोटिक सेल रे तो 70s व्हाट इज 70s कोन एडा छोटी कोआ हेची और हम डिस्कशन करबी तो राइबोसोम पढ़ेबी
तो तार टाइपटा कौन 70s इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ लार्जर 50s एंड स्मॉलर 30s 70s टा 50s और 30s सब यूनिट को नहीं की हेची किमिति सर 50 और 30 मिसले तो 80 हेबा कथा 70 काई हला हैव पेशेंस मु राइबोसोम पढेबी आगो यूकैरियोटिक सेल रे तो राइबोसोम पढेबी देयर आई विल डिस्कस बोथ 80s एंड 70s हला 80s टा यूकैरियोटिक सेल रो राइबोसोम 70s टा प्रोकैरियोटिक सेल रो राइबोसोम हमें पढिबा हैव पेशेंस सो it is 70s in nature that consist of larger 50s तो 70s टा दी भाग हो जाईची जते बेले भाग हबो दी भाग हबो लार्ज पार्ट टा कहबो 50s आउ तो स्मॉल पार्ट टा हबो 30s s मींस स्वेडबर्ग यूनिट एति की जानि था स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट डिटेल मेकानिज्म आ भीतर ଗୋଟେ बढ़िया कांसेप्ट अछि टिके बुझिवा जिंस अछि एथि फिजिक्स रा मध्ये किछि कांसेप्ट आसीबो आमे पढिबा सेंट्रिफ्यूगेशन कोन सेडिमेंटेशन कोन पढेबी एतबे राइबोसोम पढेबी सो रेस्पोंसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम रो मेन काम कोन प्रोटीन को तैयारी करबा ओके प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियोइड is the portion where genetic material of prokaryotic cell are found कहली membrane bound structure नाही prokaryote रे ओके नो मेम्ब्रेन खाली गोटे सेल मेम्ब्रेन का अछि आ सेल मेम्ब्रेन भीतर जो साइटोप्लाज्म अछि that cytoplasm does not contain any membrane bound cell organelle therefore prokaryotes are called as prokaryote कारण प्रथम कथा तार न्यूक्लियस नाही माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही बट कोन अछि न्यूक्लियोइड अछि माने गोटे बड़ हॉल्ट अछि मु कहितली सेतबेले मध्ये गोटे बड़ हॉल्ट अछि कोठे biological classification पढ़ेला गोटे large hall is there within that hall every activities are going on कोडे रंधा होची कोडे सोउचंदी कोडे गाधोचंदी कोडे बसुचंदी कोडे whatever activity are going on within that hall okay like that prokaryotic cell is there but another hall is there से hall भीतर से गोटे पार्टीशन करा हेगला कांथ पकेकी गोटे को कुआ हला बेडरूम आ गोटे कहला ड्राइंग रूम आ गोटे किचन आ गोटे बाथरूम आ गोटे डाइनिंग हॉल एमिते अलग अलग कांथ पकेकी भाग करा हेगला ओके सो एवरी रूम भीतर कि जोटे स्पेसिफिक काम हला बिकॉज़ एवरी रूम इज मेम्ब्रेन बाउंड माने कांथ टेका हेगला ड्राइंग रूम रे स्पेसिफिक काम हला कोन सब बसिले कथा हले टीवी देखिले किचन रे स्पेसिफिक काम हला कुकिंग हला रंधा हला डाइनिंग हॉल रे खिया हला बेडरूम रे सुआ हला तो एवरी रूम इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड परफॉर्म सम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन मोर अधिक मात्रा रे हे पाला सेटा यूकैरियोटिक सेल रे सीमित होउची मु एग्जांपल टा देइथली से टाइम रे तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जांपल गोटे ओपन हॉल अछि आ गोटे हॉल टा भाग भाग करा हेगला रूम रे ओपन हॉल टा प्रोकैरियोटिक सेल भलिया रे भाग भाग हेगला जो हॉल टा माने सब अलग अलग रूम रे दैट इज वर्किंग एज यूकैरियोटिक सेल पिले मु ए जिंस बडो केते एक्सप्लेन करूची एक्सप्लेनेशन एथि पे दरकार कारण एथिरे ही कांसेप्ट टा अछि पाठ पढ दे कि सेंटेंस जाको घोषि दले तो घोषा पाटी आ गेला ना आमे यारो कांसेप्ट तो बुझिया दरकार दिस इज द कांसेप्ट एथि एक्सप्लेनेशन दरकार क्लास रे बी पेशेंट धैर्यर सहित एक्सप्लेनेशन जाको सुनो so that you will have the proper analysis तमे प्रॉपर्ली एनालिसिस करि परिबो तापर नेक्स्ट टॉपिक जतो आगु को पढोइबी ए टॉपिक गुडा को एनालिसिस गुडा मुंडर रहिले आगु को कांसेप्ट क्लियर हबो नहले पाठ को पिला घुसंती घुसी मार्क आनंती इट इज फुलिशनेस एटा बोकाम हम कांसेप्ट क्लियर करी कि बुझिबाटा दरकार निहाती भाबरे okay so it is a single circular genomic DNA कि न्यूक्लियोइड भितरे सिंगल सर्कुलर जीनोमिक डीएनए अछि ओके न्यूक्लियोइड इज द पोर्शन वेयर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर फाउंड जे कि गोटे सिंगल सर्कुलर डीएनए को कंटेन करूछि जीनोमिक डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर बैक्टीरिया कॉल्ड एज एपेंडेजेस एपेंडेजेस माने आउटर प्रोजेक्शन जेमिति फ्लैजेला हला पिलाई हला मु कहली फ्लैजेला डा होछि लॉन्ग फाइन हेरी लोकोमोटरी पार्ट पढिला हम एडा सब
फॉर स्विमिंग ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया मूवमेंट पानी रे स्विम करिवो मूव करिवो पिलाई आर सिंगल सिंगल कौन सिंगुलर को कौन कहते पाइलस आर सिंगुलर को कौन कहते फ्लाजेलम सीधे बैक्टीरिया होची प्लूरल बैक्टीरियम होची सिंगुलर मेक ए नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स द पिलाई आर ट्यूबुलर आउटग्रोथ छोटो छोटो स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ हेतिवो एंड स्प्रेडेड ऑल थ्रू द सेल सरफेस ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया रो सेल सरफेस रे चारियाडे स्प्रेड हेकी थिबो छोटो 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 पिलाई गुडा एगुडार काम कोन कर लोकोमोशन ओके लोकोमोशन फ्लाजेला गोटे थिबो न दीडा थिबो बट लॉट ऑफ पिलाई आर देयर सो दे आर आल्सो रेस्पोंसिबल मेड अप ऑफ प्रोटीन एटिक एक्स्ट्रा पॉइंट मन रखले भलो एंट्रेंस पॉइंट पिलिन प्रोटीन पी आई एल आई एन पिलिन प्रोटीन अधिक थाए सी एटा कोन थाए फ्लाजेलिन थाए फ्लाजेला रे फ्लाजेलिन पिलाई रे पिलिन प्रोटीन यार मध्ये कोन काम लोकोमोशन पे दरकार आ बॉडी रो प्रोटेक्शन पे मध्ये दरकार this is the structure of bacterial cell we understood then come to eukaryotic cell I will discuss this eukaryotic cell in my next class